Hello class. Okay, in this video I'm going to tell you about a program that is related with array. I had told already many program to you, like how can we store element into the array, how can we display the array, and how can reverse the element of array. All these kind of program I had told you. And in last I think I had told about searching program. Okay, linear search I had told, and I had given that video to you all. Okay, but today in this video I'm going to tell you a program that is how can we find the maximum and minimum value from an array. If there is an array which contains some elements, and we have to find the maximum and minimum. It means the greatest and smallest element from the array. Okay, this is our program. Okay, how can we do that program? Okay, let's see. First, I'm here. You can see, just I'm opening this BlueJ. It is taking some time. Okay, now you can see the screen. BlueJ is there. Okay, here there are two programs, but I am not going to use that program. I'm taking another program here, the class, and I'm taking the class name. Suppose I'm taking the class name is maxmin. Okay, maxmin. The class name is maxmin. This is our class. Just open it and select all and delete all the codes that is pre-written. You have to delete. You can write there, but this is my suggestion. Just delete that. Just clear. After clearing this, you have to write your fresh program. Okay, I'm just maximize this. Okay, first I'm taking the import java.util.star. Okay, and then I'm taking class name is, I'm taking, what is that class name? That class name is maxmin, so we have to take same name, maxmin. Okay, and here let me correct this. Okay, this is that. Okay, and in this class public static void main and string args. This is the main class, and in main class first take the scanner sc is equal to new scanner, and in this system dot in. Okay, and these four line you have to write in each program. I had told already this point. Okay, after that just take a variable integer. I am taking a array is equal to new integer. I am taking suppose 8 elements. Okay, and I am taking integer I for loop. The first thing is we have to just store the elements into the array. Okay, to store element I am taking a message like system dot out dot println, and I am writing enter input the input numbers in array. Okay, input number in array. Okay, this is the message, and for integer I have taken a variable I, so I am using that. I is equal to 0 and I is less than, what is the size of array? You can see here the size of array is 8, so I am taking 8 and I plus plus and within this body here you can see the loop, the body of loop. Within this body
we have to store our elements into the array. Before taking the number, I am giving the message system.out.println. I am writing and enter a number. I am taking number, enter a number. Okay, and a of I is equal to sc dot next int. This is our number. If we just take this statement, this point, this is for input into the array, and after getting the array I am just writing again this and change the message. Means I want to just display all the elements of array. Display array. Okay, I am writing here display array. And अगर डिस्प्ले करा रहे हैं तो इसकी ज़रूरत हमको इनपुट की ज़रूरत नहीं है. ठीक है, मेरे स्क्रीन पे दिख रहा होगा सबको. हमें इनपुट की ज़रूरत नहीं है, हम बस डिस्प्ले कराएंगे. और डिस्प्ले कराने के लिए मैंने यहाँ पर, चलो मैं डायरेक्ट उसको लिख लेता हूँ, ए का आई. मैंने सीधा उस एलिमेंट को डिस्प्ले करा दिया, एरे एलिमेंट्स. ओके, अब हमको क्या करना है, इसी के अंदर जो भी सबसे बड़ा नंबर है और जो सबसे छोटा नंबर है वो हमें पता लगाना है. ठीक है, तो सबसे बड़ा और सबसे छोटा नंबर पता लगाने के लिए मैंने क्या किया, कुछ और वेरिएबल ले लिया. मैंने इंटीजर मैक्स ले लिया एंड मैंने मिन ले लिया. ये सबसे बड़ा और सबसे छोटे नंबर को स्टोर करेगा. ठीक है, तो सबसे बड़ा और सबसे छोटा नंबर, अब नीचे आते हैं. तो सबसे बड़ा नंबर मैक्स है, मैं सपोज कर रहा हूँ मैक्स है, लेकिन मैक्स में है क्या, मैक्स में सबसे बड़ा नंबर क्या है. तो मैक्स में जो सबसे बड़ा नंबर है वो एरे का जो पहला नंबर है उसी को मैं सपोज कर ले रहा हूँ सबसे बड़ा है. मैं जस्ट यहाँ पे सपोज किया जा रहा है. तो मैंने सपोज किया x इज़ इक्वल टू a ऑफ 0. a ऑफ 0 इज़ मैक्स, सबसे बड़ा नंबर. a का पहला नंबर ही सबसे बड़ा है. अब क्योंकि सपोज कर रहे हैं तो मैं मिन को भी सपोज कर लेता हूँ. मिनिमम कौन है, मिन इज़ इक्वल टू इज़ आल्सो a ऑफ 0. यानी a ऑफ 0 जो है वही सबसे बड़ा है और वही सबसे छोटा है. अब ये समझना, मैंने यहाँ पर एज्यूम किया है ये a का 0 सबसे बड़ा है सबसे छोटा है, ये हमें नहीं पता है, वो तो एरे में स्टोर है. अब वही चीज़ हमें पता लगाना है. तो ये पता लगाने के लिए हम लोगों ने सबसे बड़ा नंबर और सबसे 0 को, a ऑफ 0 को ही सबसे बड़ा और सबसे छोटा मान लिया है, सपोज कर लिया है. अब इसके आगे जो लॉजिक लगाएंगे उसमें हम पता लगाएंगे कि एक्चुअली में सबसे बड़ा और सबसे छोटा कौन है. ठीक है, तो इसके लिए हमें एक लूप की ज़रूरत होगी. मैं थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ. ओके, तो हमने लिया फॉर आई इज़, कितने एलिमेंट पे मैंने काम किया, आई इज़ इक्वल टू 0, आई इज़ लेस देन 8 एंड आई प्लस प्लस, इतने पे हमने काम किया है. अब इसी में हम चेक करेंगे. हमने मान लिया है कि सबसे बड़ा एलिमेंट जो है, हमने मान लिया है कि सबसे बड़ा एलिमेंट हमारा ए का 0 है और ए का 0 मेरे मैक्स में है. यानी कि मैक्स में सबसे बड़ा वाला एलिमेंट इस समय स्टोर है मैक्स में. यानी मैक्स से भी बड़ा कोई आएगा वही सबसे बड़ा होगा. अगर मैक्स से बड़ा कोई आता है तो वो ही सबसे बड़ा होगा. क्यों, मैक्स से बड़ा यानी सबसे बड़ा. तो हमें बस यही चेक करना है मैक्स से बड़ा कौन है. जो मैक्स से बड़ा है उसी को मैक्स में ट्रांसफ़र कर देंगे. और इसी का उल्टा मिन के साथ चेक कर लेंगे, मिन से छोटा कौन है. अभी तक हमने ये माना कि मिन में जो है वही सबसे छोटा है. अब अगर मिन से भी छोटा कोई आ जाए तो वो सबसे छोटा होगा. ओके, तो हम क्या करेंगे, हम चेक करेंगे इफ़ a ऑफ i ग्रेटर देन मैक्स. यानी अगर a ऑफ i मैक्स से बड़ा है, मैक्स से भी बड़ा कोई आता है तो हम क्या करेंगे, उसी को मैक्स बना देंगे. मैक्स इज़ इक्वल टू a ऑफ i. मतलब मैक्स से बड़ा अगर जो भी होगा वो सबसे बड़ा होगा, उसी को a ऑफ i को ही मैक्स में ट्रांसफ़र कर देंगे, वही मैक्स होगा. और इसी का काम हम मिन के साथ भी कर लेते हैं. तो मिन में फिर से यही चेकिंग, एल्स मत लगाना, सर डायरेक्ट चेकिंग करेंगे. इफ़ a ऑफ i लेस देन मिन. ओके,
अगर ए ऑफ आई जो है वो मिन से छोटा है, यानी ओवरऑल ऐसे समझो कि मिन से भी कोई छोटा है, अगर मिन से भी जो छोटा होगा वही मिन होगा, सबसे छोटा वही होगा, तो हम क्या करेंगे, मिन इज इक्वल टू ए ऑफ आई। मतलब मैक्स से बड़ा जो है वही मैक्स होगा और मिन से छोटा जो है वही मिन होगा। और ये क्योंकि लूप में ये काम हो रहा है, लूप को थोड़ा मैं ऊपर कर देता हूँ। ओके, ये लूप में यहाँ से यहाँ तक काम हो रहा है, तो लूप जितनी बार रिपीट करेगा मैक्स और मिन की वैल्यू चेक करके मैक्स और मिन की वैल्यू को सेट कर दिया जाएगा। तो ओवरऑल हमें मैक्स और मिन यहाँ से पता चल जाएगा। अब हमें क्या करना है, हमें मैक्स और मिन पता चल गया, उसी को हम प्रिंट करा देंगे। तो मैसेज देते हैं system.out.println और मैसेज दे देंगे मैक्सिमम एलिमेंट LEMENT या लार्जेस्ट एलिमेंट तुम लोग लिख सकते हो इज इक्वल टू प्लस मैक्स, यानी मैक्स में जो है वही सबसे बड़ा नंबर है। और इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ। हाँ, मैंने इसी को यहाँ से कॉपी कर लिया और फिर पेस्ट कर दिया और यहाँ पे मिन कर देते हैं, यानी मैसेज बदल देते हैं। और मिनिमम नंबर जो है मिनिमम एलिमेंट इज़ मिन, ये हमारा मैक्स और मिन को प्रिंट कर देगा। और यहाँ पे मिन और क्लास मेरा क्लोज हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, कंपाइल करके चेक करते हैं क्या एरर आ रहा है। फाइल सेव हुआ, तुम देख सकते हो नो सिंटैक्स एरर यहाँ दिख रहा है नीचे, इसका मतलब सब कुछ सही है। अब इसको क्लोज करके राइट क्लिक मेन एंड ओके कर देंगे। जैसे इसको ओके कर देंगे, अब हम यहाँ पे इसका नंबर इनपुट करा लेते हैं। तो मैं कुछ भी ले लेता हूँ रेंडमली, मैंने ले लिया चलो 55228899117766, ठीक है। और चलो मैंने ले लिया 11। अब जैसे ही मैं इंटर करूँगा देखना क्या होगा। जैसे ही मैंने इंटर किया यहाँ पे मेरे सारे नंबर आ गए 55228899117766, ये आ गया 11, बल्कि यहाँ पे 2 बार आया। तो अब यहाँ पे देखो मैक्सिमम एलिमेंट 99, मिनिमम एलिमेंट 11, यानी इस पूरे एरे में सबसे बड़ा नंबर 99 है और सबसे छोटा नंबर 11 है। ठीक है, मेरे ख्याल से क्लियर हो रहा होगा। एक बार इस प्रोग्राम को देखना, ये इसका आउटपुट है। और यहाँ पे एक बार मैं फिर से प्रोग्राम ओपन कर दे रहा हूँ। मैंने सबसे पहले नंबर ले लिया, उसको डिस्प्ले करा लिया और सबसे बड़ा और छोटा नंबर सुपोज कर लिया कि 0 वाला ही सबसे बड़ा और छोटा है। अगर उससे भी बड़ा कोई है उसको ग्रेटर बना दिया, उससे छोटा कोई है तो उसको लेसर बना दिया। और जो भी मैक्स और मिन की वैल्यू है उसको हमने यहाँ पर प्रिंट करा दिया। ठीक है, ये समझ में आ रहा होगा। ओके, तो इसको ट्राई करना, कोई डाउट हो तो मुझसे कांटेक्ट करना। थैंक यू।